Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yesterday, the topic was marketing planning. So, there are some points left. We have completely studied the marketing planning concept. Starting from the definition, marketing planning is a document prepared by the marketing department, and it is actually a yearly document that demonstrates all of the activities of a marketing department within the year. And the marketing plan has been designed in order to achieve the corporate business aims and objectives. So marketing planning has different stages. First of all, we define the purpose of the marketing department for the current year, then conducted this situation analysis. Step number 2. After that, establishing the marketing objectives and marketing strategies, these strategies which are used to achieve the marketing objectives, and the marketing strategy is the most important. इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि हम बेसिकली marketing strategy को डिजाइन करें. Corporate objectives has been designed by the board of directors, the senior people, and the marketing planning is done by the marketing manager, and the marketing strategy is also designed in by the marketing manager along with the consultation of the marketing people. Different departments we are here, like the sales department, research department, promotion and distribution department. इन चारों department की consultation के साथ marketing strategy prepare की जाती है. After designing, establishing the marketing objective and strategies, we write the marketing mix tactic, product, price, promotion, place के बारे में marketing plan में लिखा जाता है. What kind of product you are offering to consumers, prices क्या होंगी, what type of promotion should be conducted, and the place means the channel of distribution. After that, step number 5 is allocation of financial budget to the marketing department to achieve this marketing planning. This is the amount of money which is allocated to achieve the marketing department, to achieve the concept of marketing department. So let's start it with the topic number 6, that is called an executive summary. Actually, the marketing planning process is completed. Actually, the marketing planning process is completed. आपको marketing plan complete हो चुका है. ये marketing plan 1 साल के लिए, 6 months के लिए बनाया जाता है. क्या इसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी है? हाँ जी, इसको 1 साल के लिए डिजाइन किया जाता है. ये ईयरली होता है, लेकिन इसमें रूम ये रखा गया है, इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इसको 6 months का, अगर आपका सीजनल बिजनेस है, या क्वार्टरली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है. सो मार्केटिंग प्लानिंग एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की प्लानिंग का नाम है. रिकमेंड ये किया गया कि आप मार्केटिंग प्लान बनाएं 1 साल के लिए. और स्टेप नंबर 5 में आपका मार्केटिंग प्लान जब बजट एलोकेट किया गया था, दैट इज कंप्लीटेड. द मार्केटिंग प्लान हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ बस इसमें 6 स्टेप ये है. एक्चुअली द मार्केटिंग प्लान इज डिजाइन बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बट दैट शुड बी अप्रूव्ड by the board of directors. The marketing plan has been presented in front of the board of directors and the senior managers for the approval. मार्केटिंग प्लानिंग करना डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की या ब्रांच मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो उसका अप्रूवल है वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एग्जेक्टिव समरी और टाइम स्केल इसमें यही है. तो ओवरऑल समराइज प्लान बनाया जाता है, इसकी शॉर्ट समरी तैयार की जाती है एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द सीनियर मैनेजर्स, जो कि अप्रूव किया जाता है. एट द टाइम ऑफ रिव्यूइंग द मार्केटिंग प्लान बाय द बोर्ड, इसमें अपडेट भी किया जा सकता है, इसमें चेंजेस भी की जा सकती हैं. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो मार्केटिंग प्लान को एक्सेप्ट ही ना करें बोर्ड, और मार्केटिंग मैनेजर जो हैं, जो इसके साथ दिन रात जुड़े हुए थे, वो उनको एक नए सिरे से मार्केटिंग प्लान, तो एक ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है. So point 6 is just to get the approval from the board of directors and from the senior managers and from the chairperson, owners, the main shareholders, directors,
इनसे अप्रूवल लेना बेसिकली पर्पस है। अगर आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं तो ऑब्वियसली आपका मार्केटिंग प्लान हेड ऑफिस में जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो इसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। रिव्यूइंग द प्लान, रिव्यू कब किया जाता है? पहले तो एक प्रोसेस मैं बताता हूँ, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केटिंग प्लान। हर प्लान बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम स्केल के लिए बनाया जाता है और उस टाइम स्केल के बाद उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसका कंक्लूजन कैलकुलेट किया जाता है, हाउ मच वी सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। जो डिजाइन किया उसको किस हद तक हमने अचीव किया, अंडर अचीवमेंट या ओवर अचीवमेंट और अचीव्ड, तीन इसमें फ्रेजेस जो हैं स्टडी किए जाते हैं। सो रिव्यूइंग द प्लान, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिव्यू। मार्केटिंग प्लान को विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रांच मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स रिव्यू करते रहते हैं। ऑनगोइंग स्ट्रेटजीज को बताया गया कि मार्केटिंग प्लान क्योंकि एक प्लान है उसको आप रिव्यू करते रहें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे गुजरता जाता है और ये देखा जाता है कि आप उस मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं, और एट द एंड एक फाइनल रिव्यू लिया जाता है जिसमें ये कंक्लूड किया जाता है कि आप किस हद तक मार्केटिंग प्लान को और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे। इसमें आपके पास आंसर्स आते हैं अचीव्ड और अनअचीव्ड या ओवर अचीव्ड, अंडर अचीव्ड, और इसमें फिर यू नीड टू टेक अप करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ अंडर अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स। उसमें आपको स्ट्रेटेजी को ये देखना पड़ता है कि नेक्स्ट ईयर जो नई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जो लास्ट ईयर स्ट्रेटेजी थी वो क्यों अचीव नहीं हो सकी, और अगर ओवर अचीव भी है और अगर आपने उसको सक्सेसफुली अचीव भी कर लिया, दैट अगेन दैट स्ट्रेटेजी हैज बीन रिव्यूड बाय द बोर्ड टू री इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा से यूज करने का प्लान किया जाता है क्योंकि इस स्ट्रेटेजी की वजह से बिजनेस अपने कॉर्पोरेट के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में सक्सेसफुल। So the result of the marketing plan and the strategy needed to be collected by the board of directors and the senior managers and the branch heads and the departmental heads, and these objectives, these planning process are checked according to the against the original objective by the board of directors. Ongoing process मतलब ये है कि पूरा साल ये process जो है वो चलता रहेगा और ये end नहीं होगा, reviewing हमेशा चलती रहती है, review चलता रहता है। Changes to overall plan might be the end of the planning period under review. इस लाइन को दोबारा से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। What about the changes in the marketing plan? Amendment in the marketing plan, whether it is allowed or not allowed. It depends on the flexibility of the organization, norms of the organization. Sometimes organization का norm है कि उसकी जो planning है उस process में flexibility है, then there will be a chance of adding reviewing amendments. अगर flexibility नहीं है, most of the time centralized organization they do not have a flexible plan. तो plan बन गया वो पूरा साल चलेगा और उसमें कोई change नहीं होगी। ये flexibility का ना होना ये मार्केट में ड्रॉबैक हो सकता है कंपटीटर कोई नई प्रमोशन मार्केट में इस साल इंट्रोड्यूस करवाए एंड यू डू नॉट हैव द न्यू प्रमोशन, यू कैन नॉट अडॉप्ट द न्यू प्रमोशन बिकॉज आपका प्लान आपको ये अलाउ नहीं कर सकता कि आप कंपटीटर की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सके। आपकी अपनी एक सेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी है जिसको आपने पूरा साल मार्केटिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चलाना है, तो इसमें आप कंपटीशन लूज कर सकते हैं। ओवरऑल सक्सेस मस्ट आल्सो बी कैलकुलेटेड by calculating assessing the information at the end of the year. लास्ट पे बिल्कुल उसको रिव्यू किया जाता है और रिव्यू में एक कंक्लूजन जो है वो दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वैल्यूएशन की तरफ आ जाते हैं, इसके कुछ बेनिफिट हैं। इट इज एक्चुअली अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। आप बिजनेस प्लान पढ़ते हैं, बिजनेस प्लान का ये मेन कंपोनेंट है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज और सारी स्ट्रेटजीज को क्या करता है, रिव्यू करता है। तो इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि बिजनेस प्लान बनाया जाता है पहले या मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है? सो एक्चुअली दैट क्वेश्चन इज नॉट राइट। मार्केटिंग प्लान ही आपके पास बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान इटसेल्फ खुद कुछ नहीं है, बल्कि मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्शन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स या अकाउंटिंग प्लान का नाम बिजनेस प्लान। सो इट इज अ पार्ट, मेन कंपोनेंट ऑफ, इधर से ही आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन को डिजाइन किया जाता है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को डिसाइड किया जाता है और लास्ट पे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को प्लान किया जाता है।
So marketing plan, the main purpose of developing the marketing plan is to establishing the main business marketing objectives and the marketing strategies that lead to the success or failure. Most important component, अगर आप कहेंगे सर marketing department को शॉर्टली बताएं क्या है, तो मैं कहूँगा मार्केटिंग प्लान का मेन कंपोनेंट आपको समझ आया। उसके बाद मार्केटिंग प्लान एक्चुअली इंक्लूड्स कंटेन्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजीज। ये दो मेन कंपोनेंट्स आप इजीली लिख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A2 में सिर्फ 2 चैप्टर्स मार्केटिंग प्लानिंग और ग्लोबलाइजेशन के नाम से स्टडी किए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में से मार्केटिंग प्लानिंग का क्वेश्चन जो है आ जाता है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने मार्केटिंग प्लान एक डिज़ाइन करना है और उसको बेसिकली उसको इवेल्युएट करना होता है कि किस किस्म का मार्केटिंग प्लान उस बिजनेस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे, और उस सजेशन के बाद आप उसको इवेल्युएट करेंगे। एनालिसिस में सजेशन होगा और इवेल्युएशन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि जो आपने उसको सजेस्ट किया उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि जो मार्केटिंग प्लान है इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल है। सो दो बेनिफिट्स हमने पढ़े। मार्केटिंग बिजनेस प्लान का ये कंपोनेंट है। इसके बाद इसके अलावा इसमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हैं। प्लानिंग प्रोसेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। वैसे ये पॉइंट भी अगर देखा जाए तो ये बिजनेस प्लान का ही पॉइंट है। प्लानिंग प्रोसेस क्या है? हाउ वी कंडक्ट, व्हेन वी कंडक्ट द प्लानिंग प्रोसेस, व्हेन वी स्टार्ट द प्लानिंग प्रोसेस, एट when we are going to start a business, at the startup, when we establish a business organization, when an entrepreneur establish a business organization, then the first step is to make a plan, जिसे business plan के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्लानिंग कंपोनेंट है जो कि बिजनेस में, एंड प्लानिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे एक और भी जो कंपोनेंट आपने स्टडी किया रिसेंटली लास्ट लेक्चर में, जिसे सिचुएशन एनालिसिस बोला गया। सिचुएशन एनालिसिस में आपने ये स्टडी किया था कि मार्केट की करंट सिचुएशन को पहले स्टडी किया जाता है। मार्केट रिसर्च शुड बी कंडक्टेड, information we got about the products, about the target audience, about the economic, social, political, technological conditions of a market, information about the competitor। तो ये जो एक essential component है, ये सारी चीजें इन चीजों को प्लान करने के लिए बनाया जाता है। यस, एक क्वेश्चन कल रेज किया था कि क्या मार्केटिंग प्लान स्टेक होल्डर्स को शो किया जाता है, इंटरनल को या एक्सटर्नल को? तो ये बताया गया था कि एक पब्लिक प्लान है और ये शो किया जाता है एक्सटर्नली स्टेक होल्डर को। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एम्प्लॉयज़ को भी शो किया जाता है ताकि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल से रीड आउट कर सके और उन पे वर्कआउट कर सके। यहाँ पे एक चीज़ समझी जा सकती है और एक क्वेश्चन दोबारा से रेज किया जा सकता है, is there a same marketing plan is offered to the public and to the employees? A same marketing plan, a same detailed plan? इसमें पहली बात तो ये है, yes, the same marketing plan has been offered to the external and as well as internal people, and there is no difference, no differentiated marketing plan has been offered to the external or internal। लेकिन इसमें एक बात ऐड भी की जा सकती है, जो स्टेक होल्डर को शो किया जाता है वो एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान के तौर पे शो किया जाता है। डिटेल्ड मार्केटिंग, सॉरी, जो एम्प्लॉयज को शो किया गया दैट इज अ डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान, और जो कि आपने अपने कस्टमर्स को और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को जो मार्केटिंग प्लान शो किया, मार्केटिंग प्लान तो वही है लेकिन ये लेस डिटेल्ड। So it increase the commitment of employees। जब employees को marketing plan में ये नजर आएगा कि particularly sales के targets achieve करने पे उनको financial और non financial rewards दिए जाएंगे, तो वो commitment और motivate होंगे और marketing plan को achieve करने के लिए workout करेंगे। So this is all about the benefit of marketing plan। Now come to the limitation। We have some limitation of marketing plan।
Yes, you need to hire specialized marketing managers who are able to design the marketing plan. इसमें अब एक लिमिटेशन आ सकती है स्मॉल फर्म्स. व्हाट अबाउट द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव एक्सपर्ट मार्केटिंग मैनेजर्स. तो इसमें ये जो बताया गया कि जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्मली अच्छा मार्केटिंग प्लान बना लेती हैं. इसमें एग्जांपल ऐसे आप देख सकते हैं कि जो ऑल्पर्स और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका कंपैरेटिवली मार्केटिंग प्लान काफ़ी अच्छा होता है. इनकी एडवर्टाइजमेंट और इनकी प्रमोशन पॉलिसीज, इनके एड्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लानिंग अलॉन्ग विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट with the expert qualified marketing expert people. तो इनका मार्केटिंग प्लान काफी ज्यादा अच्छा होता है. यूफोन का मार्केटिंग प्लान आपने टीवी पे देखा है, काफी अच्छा मार्केटिंग प्लान वो डिजाइन करते हैं. क्या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव द कॉस्ट एंड टाइम टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग प्लान. लेकिन अब मार्केटिंग प्लान स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ हद तक अवेलेबल है. मार्केट में एक्सपर्ट फर्म्स हैं, मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज या मार्केटिंग एजेंसीज के नाम से ये एग्जिस्ट करती हैं और इनसे एक मार्केटिंग प्लान को विद अ वेरी फ्यू प्राइस और चीप प्राइस आप मार्केटिंग प्लान इफ यू आर बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आप इसको प्रिपेयर करवा सकते हैं. सो दैट मार्केटिंग प्लान इज also available for the small as well as the large organization. Large organization have their own marketing department who are responsible for designing and establishing the marketing plan. एक जो ड्रॉबैक बताया गया ना स्मॉल फर्म में डू नॉट हैव मनी, तो ये इसको मैंने इसको जस्टिफाई भी कर दिया कि अगर उनके पास मनी नहीं है तो वो फिर भी वो उसको प्रिपेयर करवा सकते हैं यूजिंग द एक्सपर्ट थर्ड पार्टी मार्केटिंग फर्म्स. यस, मार्केटिंग प्लान कुड बी आउटडेटेड. वजह, मार्केटिंग प्लान आपने बनाया और मार्केटिंग प्लान आपका आउटडेटेड हो गया और मार्केट में उसकी वैल्यू, और इसकी बहुत सारे रीजन है. अभी आपके सामने जो सिचुएशन वायरस की जो सिचुएशन है ये इस वजह से आपका मार्केटिंग प्लान बहुत सारे लोगों ने, और न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे टॉप आउटलेट्स क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने अपने नंबर ऑफ आउटलेट्स को क्लोज कर दिया. क्या उन्होंने मार्केटिंग प्लानिंग नहीं की थी? यस, उन्होंने मार्केटिंग प्लानिंग की थी, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड और रैंडम चेंजेस हैं सेल्स में इसको फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है. सो बहुत सारे बिजनेसेस को इस कोविड-19 में अफेक्ट आया और उनकी जो मार्केटिंग प्लानिंग, जो उन्होंने सोचा था सेल्स के बारे में, जो उन्होंने सोचा था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, वो अचीव नहीं हो सका. पाकिस्तान में आप देखें कि जो जितने भी क्लोथिंग आउटलेट्स हैं या जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एनपीडीज पे चल रहे हैं, नो प्रोडक्शन डेज, यानी वो अपनी प्रोडक्शन को शेड्यूलिंग में नो प्रोडक्शन में 30 डेज एनपीडीज पे चल रहे हैं, 60 डेज एनपीडीज पे चल रहे हैं. मार्केटिंग प्लान कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, ये भी सेम पॉइंट है. इकोनॉमिक डाउन टर्न जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आपके मार्केटिंग प्लान को आउटडेटेड बना सकता है. अगर इन्वर्टर एसीज मार्केट में आए हैं तो स्प्लिट एसीज, पीपल डू नॉट वांट टू बाय दीज ओल्ड फैशन एसीज, तो आपको डेवलप करना है. तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये भी आपके मार्केटिंग प्लान को आउटडेटेड बना सकता है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आपके मार्केटिंग प्लान को आउटडेटेड बना सकता है. Marketing plan has been completed. The next concept, elasticity. Elasticity basically the same concept in economics. एक टर्म है जो इसमें डिफरेंटली पढ़ाई जाएगी जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती, बट द elasticity is same as the responsiveness of demand due to change in certain type of factor. प्राइस इलास्टिसिटी आपने एएस लेवल 1 में पढ़ी जिसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन से डिमांड की फ्लक्चुएशन नजर आई, और इस सिलेबस में आपके पास 3 इलास्टिसिटीज का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा. कंज्यूमर इनकम, प्रमोशनल इलास्टिसिटी एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सो कंज्यूमर इनकम्स और क्रॉस ये ऑलरेडी होपफुली ये आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी की है, और जो प्रमोशनल है ये बिजनेस में एक न्यू इलास्टिसिटी के तौर पे ऐड की गई है. इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स वाली डेफिनेशन, मींस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. और वो अदर फैक्टर्स इनकम हो सकता है, प्राइस हो सकती है, प्रमोशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, और प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फर्स्ट इलास्टिसिटी है दैट इज रिलेटेड विद द इनकम ऑफ अ पीपल.
measures the responsiveness of demand due to change in consumer income. लेकिन इस elasticity में ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इनकम के चेन से डिमांड आपकी फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन इसमें एक और बात भी याद रखने वाली है कि while studying this income elasticity of demand, we divided the product into 3 types. In the market, we have 3 types of product: the inferior products, normal, and the luxury goods. 3 तरह की products, तीनों में इनकम elasticity का जो इफेक्ट है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा. नॉर्मल गुड्स वो है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और इनका इनकम इफेक्ट नजर नहीं आएगा. ये प्राइसेस इनकी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे क्योंकि ये आपकी जिंदगी की नॉर्मल गुड्स हैं. फ्यूल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्योंकि नॉर्मल गुड है, तो इसका इनकम इफेक्ट से जो इसकी डिमांड है उस पर बड़ा स्लाइटली सा इफेक्ट हो. मेडिसिन क्योंकि आपकी लाइफ की जरूरत है, आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया तो वो आपने यूज करनी है. अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस डोज को डबल कर लें. अब बोलें जी मैं तो अमीर हो गया हूँ, मेरी तो इनकम ज्यादा हो गई है, तो मैं 2 की बजाय 4 गोलियां खा लेता हूँ. सो नो, इनकम का जो इफेक्ट है वो नॉर्मल गुड्स पे आपको नजर नहीं आएगा. जबकि इंफीरियर गुड्स, लो प्राइस गुड्स, नॉन ब्रांडेड गुड्स, इनकी डिमांड उस वक्त इंक्रीज करेगी जब इनकम लोगों की डाउन होगी, और लग्जरी गुड्स की डिमांड उस वक्त इंक्रीज कर जाएगी जब लोगों की इनकम जो है बढ़ेगी. व्हेन इनकम of a people in the economy increases, the demand for luxury goods and services are increasing. Luxury furniture, cars, computers, laptops, LCDs जो बड़े साइज की है, इन्वर्टर, एसीज की तरफ फिर लोग, ये सारी वो चीजें हैं जो वांट्स हैं, और वांट्स में भी इनकी कैटेगराइज किया जाता है जो कि लग्जरियस लाइफस्टाइल में आ जाती हैं. तो इनको लोग उस वक्त बाय करेंगे जब उनकी इनकम इंक्रीज करे. सो इनकम का इंक्रीज का अफेक्ट लग्जरी गुड्स पे, डिक्रीज का अफेक्ट इंफीरियर पे है, और नॉर्मल गुड्स पे उनका इफेक्ट इतना ज्यादा नजर नहीं आएगा. डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला, डिमांड, चेंज इन डिमांड ओवर चेंज इन इनकम. सो नेक्स्ट विल बी द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट रिलेटेड विद द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर. इसमें आपको सबसे पहले तो एक डेफिनेशन लेना होगी, प्रमोशनल स्पेंडिंग क्या चीज है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर या प्रमोशनल स्पेंडिंग क्या चीज है. द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एलोकेटेड फॉर प्रमोशन. हर बिजनेस अपने बिजनेस के, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन बजट एलोकेट करता है. कुछ बिजनेस नहीं भी करते प्रमोशन बजट. इट्स अप टू योर अप्रोच, आप किस हद तक कितना बजट, हाउ मच बजट is allocated to advertisement or to the marketing department. Promotional elasticity measures the responsiveness of demand due to change, due to increase or decrease in promotional spending. आपकी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट अगर आप ये प्लान करते हैं, रूल ये है, इस इलास्टिसिटी का रूल ये है कि जैसे जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करें वैसे जैसे जैसे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, आपकी सेल्स का डाटा जो है वो इंक्रीज होना चाहिए. और अगर आपकी प्रोडक्ट की का सेल्स डाटा इंक्रीज नहीं हो रहा, डिस्पाइट इसके कि आप प्रमोशन पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसके 2 मतलब है. 2 meanings are there. If the sales are not increasing despite increasing in the promotional or advertisement expenditure, it has 2 meaning. पहला मतलब तो ये है कि जो आप एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा, जो मनी स्पेंड कर रहे हैं, दैट वुड बी वेस्टेड. उसका कोई बेनिफिट नहीं. आपकी एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं है. आपकी एड जो आपने टीवी या बिलबोर्ड्स पे लगाई है वो लोगों को पसंद नहीं आई, वो इफेक्टिव नहीं रही, उसने आपकी सेल्स को इंक्रीज नहीं किया. एडवर्टाइजमेंट बजट वुड बी वेस्टेड. एक मीनिंग. और दूसरा मीनिंग ये है जिसकी जरूरत ही नहीं है, वो मीनिंग ये है कि आपको प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विच हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशनल inelastic product. Promotional inelastic, they do not respond while increasing in the promotional expenditure.
सॉल्ट या शुगर को अगर आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसकी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज वो इनएलास्टिक है, उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। शेल या पीएसओ अगर अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, उनकी सेल might not be increases because they don't, the product is considered to be a need, necessity. They do not require advertisement budget. So या तो आपकी प्रोडक्ट की जो प्रमोशन कॉस्ट है वो वेस्ट है, या फिर आपकी प्रोडक्ट नीड है। प्रमोशनल इलास्टिसिटी का रूल ये है, ये आपको फोर्स करती है कि जैसे जैसे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाएंगे, आपकी सेल बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ती तो समझ लें कि आपका प्रमोशनल एक्सपेंडिचर जो है वो वेस्ट जा रहा है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट इलास्टिसिटी इज द क्रॉस इलास्टिसिटी of demand, measures the responsiveness of demand due to change in the price of other goods and services. अगर कोका कोला की प्राइसेस रिड्यूस होंगी तो डिमांड अफेक्ट होगी पेप्सी की, इसीलिए रमजान में अक्सर पेप्सी जो है वो प्राइसेस को रिड्यूस करता है और रमजान ऑफर या सेल्स ऑफर लगा देता है। पूरे साल का जो अपना पुराना स्टॉक है वो इस तरीके से सेल करना एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। वो बहरहाल ये तो एक अलग बात है। रमजान ऑफर जो है वो पेप्सी लगा देता है और डिमांड कोका कोला पे इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज ज्यादातर लोग जो हैं ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफरिंग द सेल्स प्रमोशन इन स्पेशली रमजान ऑफर्स लोग बाय करते हैं, और उस रमजान ऑफर की वजह से अफेक्ट होती है कोक और पेप्सी आपस में क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट, यस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होंगे। तो एक प्रोडक्ट की प्राइस से दूसरे की अफेक्ट होगी। इस तरह मैं कॉम्प्लीमेंट्री की भी एग्जांपल ऐड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो कार्स की जो डिमांड है वो रिड्यूस होगी। अगर सेल फोन सिम्स यूफोन अगर अपने रेट्स को बढ़ाएगा तो उस सेल फोन मोबाइल फोन जो कि आजकल मार्केट में सैमसंग या रेडमी नोट सीरीज के जो मोबाइल है उनकी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। प्रोडक्ट की प्राइस एक चेंज हो रही है, डिमांड किसी दूसरी, बट इसलिए डिमांड चेंज हो रही है, द प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉफी और मिल्क ये कॉम्प्लीमेंट है आपस में एक दूसरे के, पेट्रोल और कार ये कॉम्प्लीमेंट है, लाजमी एक दूसरे के साथ। एक की प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है। तो इसकी सिंपल फॉर्मूला, चेंज इन डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी की प्राइस चेंज होने से किसी दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। सो वी स्टडीड 3 elasticities, इनकम, एडवर्टाइजमेंट elasticity एंड द क्रॉस elasticity ऑफ डिमांड। इसका एक लास्ट पे बस एक लिमिटेशन स्टडी की जाती है, और वो लिमिटेशन ये है, एक स्मॉल लिमिटेशन इज देयर ऑफ ऑल दीज इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट द सेम। ये एग्जाम में आप लिख सकते हैं, इवैल्यूएशन के अंदर एक लिमिटेशन आप लिख सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी का रिजल्ट है ये श्योर नहीं है कि वो जो सेल्स इंक्रीज है वो ड्यू टू इनकम बढ़ने से है या वो प्रमोशन बढ़ने से। हाउ यू श्योर अबाउट? एक डॉक्टर, इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, इसकी एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। एक एग्जांपल मैं ऐड करूंगा, उस एग्जांपल से काफी ये क्लियर हो जाएगा ये लिमिटेशन कि एक डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और उस मेडिसिन खाने से उस पेशेंट को उस मेडिसिन के यूज करने से, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन यूज करने से पेशेंट को जो है रिकवरी हो जाती है। हाउ द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट वुड बी श्योर अबाउट कि वो उसी मेडिसिन से ठीक हुआ है? क्या हर बीमारी की एक ड्यूरेशन होती है? क्या वो उस ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी रिकवरी में भी आती है? यस, बिल्कुल ऐसा है। क्या अल्लाह ताला भी उस बीमारी की शिफा विदाउट यूजिंग द मेडिसिन भी समटाइम्स अल्लाह ताला भी हमें शिफा दे देता है बगैर किसी दवाई के? दुआ से भी हमें रिकवरी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। हाउ द डॉक्टर ये श्योरिटी से कह सकता है कि जो मेडिसिन मैंने आपको लिख के दी थी उस मेडिसिन से आपको जो है वो रिकवरी मिली है? आई डू नॉट थिंक। दैट इज द सेम limitation of the concept of elasticity, where you do not show whether the increase or decrease in sales data is based on income increasing or decreasing the promotional expenditure or due to the other change in the price of other factor.
ये एक लिमिटेशन है, ये आप एग्जाम में वैल्यूएशन फैक्टर के अंदर लिख सकते हैं। आफ्टर द एनालिसिस आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड हेल्दी पॉइंट। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस related with elasticity and the marketing plan. Allah Hafiz.